Jai Hind. With immense pleasure and great honor, I, Dr. Nisha Rana, in charge IPR Cell, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, and member AFTEFS Society, warmly welcome all distinguished dignitaries, eminent academicians, scientists, researchers, faculty members, students, industry experts, and participants from across the country to the day 10th of Krishi Manthan, the 21 days summer training program. The unique academic initiative is being jointly organized by Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi, University of Agriculture Sciences, Raichur, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, GD Goenka University, Gurugram, Sant Girira Guru Vishwavidyalaya, AFTEFS Society, Vital Biotech Education Group. This program has been started from 1st June 2026 and will be continued to 21st June 2026, focusing on agriculture, horticulture, forestry, sustainability, entrepreneurship, modern technology, and skill development. Moving forward, we have two technical sessions scheduled for day 10, with each session lasting 45 minutes. Now, it's my privilege to welcome and introduce our speaker for technical session first of day 10, Dr. Gaurav Sharma. Dr. Gaurav Sharma, Professor and Head, Department of Floriculture and Landscaping, RLB CAU, Jhansi, is an accomplished floriculturist with 20 years of experience in academic teaching and research. He completed his BSc AG from JNKVV Jabalpur, MSc in Floriculture and Landscaping from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and PhD in Horticulture from IJKV Raipur. He begins his professional career at CRRE Cuttack. Then he worked as assistant professor horticulture at IJKV Raipur and later joined Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi. His research work spans crop improvement and management, including flower production, moisture stress studies, value addition in ornamentals, and conservation of commercially important flower crops such as marigold, gibberella, and bougainvillea and shrubs. He has developed three variety and five technology and strengthened research infrastructure throughout the establishment of laboratory and experimental field. He has led various externally funded projects as a PI, co-PI, and guided more than 40 postgraduate and 7 PhD scholars as major advisor and member of advisory committee. He has also introduced improved variety of many floral plants. Dr. Sharma has published more than 45 research papers, authored two NCRT textbooks and many book chapter, bulletin and popular articles, including several manuals. He is the recipient of International Society of Horticultural Sciences Award 2015, Young Scientist Award 2009, Indian Science Academy Award, and Travel Grant in 2015, Best Oral Presentation Award. Dr. Sharma is also a fellow of important society like Indian Society of Ornamental Horticulture, SHRD, Environment and Social Welfare. Now, I would like to invite Dr. Gaurav Sharma to deliver his lecture for technical session first. We kindly request you, sir, to kindly use bilingual approach during your address, as few students are from Hindi background Okay. and from Hindi medium. So Okay, I ma'am. think it will be beneficial for both. Okay. So thank you very much, madam, for the humble words of introduction. And I am grateful to the organizers for giving me this opportunity to interact with you. And now I will share my presentation today. Is the screen visible? Yes, sir, it is visible. Visible, sir, visible. Yes, not on Thank you. slideshow mode. Okay. Now fully visible. The notes are fully visible. It's generally on slide display. I think you used two slideshows for a 5K on slideshow mode. Okay, Slides, I have done the slideshow. notes are but not in Sir, slideshow mode. sometime it will take time, sir. No problem.
Okay, It's a then we'll net wait for connectivity maybe. a few seconds. So it is still not there. No, sir. I'll reshare. I'll share Yes. again. Sure, sure. Yes, Yes, sir. sir. Done. Full screen mode. Okay. Okay. Thank you. A very warm good evening to all of you. And again, uh, I'm thankful and grateful to the organizers to give me opportunity to present this lecture. So my topic is on modern floriculture, innovation-driven enterprises and startup opportunities. So this is altogether another vista which I will be talking on बिकॉज फ्लोरिकल्चर के बारे में बहुत बात हो चुकी है पर आज के दिन में मॉडर्न फ्लोरिकल्चर क्या है एंड व्हाट आर द इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज ये क्या है इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है फ्लोरिकल्चर में ओवर द लास्ट 1 decade and if we see the cultivation area has been about 3 lakh hectare with loose flower production of about 2.28 million metric tons and cut flower production of about 1 million metric tons अगर स्टेट्स की हम बात करें तो तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है जहां पर 21% प्रोडक्शन हो रहा है फॉलोड बाय कर्नाटका मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल फ्लोरिकल्चर की क्यों हम बात कर रहे हैं व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरिकल्चर टुडे एंड इट इज इन नीड ऑफ द आवर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड also in terms of the amount of money the people are making out of this business तो अगर देखें तो हमारा देश जो है वो कल्चरल रिलीजियस और सोशल डिमांड फूलों की बहुत ज्यादा है चाहे वेडिंग हो चाहे सोशल फंक्शंस हो किसी भी प्रकार के फंक्शन में हम फूलों की आवश्यकता को महसूस करते हैं और यूज करते हैं हिस्टोरिकल टेम्पल्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हमारे देश में बहुत हैं जिसके कारण आप देखेंगे कि साल भर देर इज डिमांड ऑफ फ्लावर्स किसी भी मंदिर में आप जाएंगे ज्यादातर लोग वहां पे फूल अर्पित करते हैं और किसी भी सीजन में आप जाएंगे उस सीजन में वहां पर आपको फूल मिलेंगे तो ये दिखाता है कि जो डिमांड है हमारी डोमेस्टिक डिमांड है फूलों की वो पिछले कुछ दशकों में काफी कुछ ज्यादा बढ़ी है जिसके कारण फ्लोरिकल्चर की बात आज हो रही है अगर देखें तो देश में हमारे कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है चाहे आप बात कर ले रेलवेज की हाईवेज की एयरपोर्ट्स की तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस इज डन इन ए कन्वीनियंट वे तेजी से हो सकता है और आप जानते हैं फूल पेरिशेबल चीज होती है पेरिशेबल कमोडिटी है बहुत जल्दी खराब होती है तो उसकी मार्केटिंग और सेलिंग के लिए अच्छी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है जो आज हमारे देश में उपलब्ध है इतना ही नहीं जो हमारे छोटे किसान हैं जो किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है उनके लिए ये आय का बहुत अच्छा साधन है साथ ही अगर आप देखेंगे अगर आप इसको अन्य फसलों के साथ भी अगर लगाते हैं देन ऑल्सो फ्लोरिकल्चर से आप बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं जिसके कारण किसानों के अंदर एक रुझान आ रहा है कि हम खेती या तो पूर्ण रूप से फूलों की करें या किसी और फसल के चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो उनके साथ हम ट्रैप क्रॉप का भी ये काम करती है क्लाइमेट हमारे देश में नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक की अगर बात करें तो किसी ना किसी देश के हिस्से में हम फूलों की खेती साल भर कर सकते हैं ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि देश में बर्फ गिर रही हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो सारे प्रकार के क्लाइमेट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू बिजनेस है कम जगह में कम अमाउंट में इसमें हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अन्य फसलों के मुकाबले फूलों की खेती से कंपोनेंट्स के पास के रूप में तो लूज फ्लावर प्रोडक्शन कट फ्लावर प्रोडक्शन आजकल ग्रीन हाउसेज जो प्रोटेक्टेड फ्लोरिकल्चर है उसकी बहुत बात हो काम हो रहा है और वैल्यू एडिशन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है जिससे हम फ्लोरिकल्चर में पैसा कमा सकते हैं तो अगर देखें कुछ सालों की अगर हम बात करें
तो फ्लोरिकल्चर का जो लैंडस्केप है, देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस ट्रेडिशनल फ्लावर कल्चर हुआ करता था, तो किसान देसी तरीके से खेती करते थे, वो अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन करने लगे, जिसके कारण कि उनकी आय भी बढ़ी है। साथ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का प्रचलन बढ़ा है। प्रिसीजन फ्लोरिकल्चर पे मैं आगे भी चर्चा करूंगा, ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरूरत और समय को देखते हुए आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज की पूरे देश में बात हो रही है, पूरे ग्लोब में बात हो रही है। क्लाइमेट स्मार्ट फ्लोरिकल्चर भी अब एक एवेन्यू है जिसपे कि काम चल रहा है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि हर क्षेत्र में हुआ है, यू विल सी एवरीवेयर देयर हैज बीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सो इज द केस विद फ्लोरिकल्चर आल्सो। और यहाँ पे भी आप देखेंगे अब हम डिजिटल रूप में काफी बात करनी है। तो मॉडर्न फ्लोरिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो ऑल टुगेदर एक नया डायमेंशन देता है। ये कल्टीवेशन के साथ साथ बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की बात, बिजनेस की बात होती है, इसमें एनवायरनमेंट की बात होती है, इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। तो आजकल प्रोडक्शन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। फ्लोरिकल्चर में भी आप देखेंगे जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम क्रॉप स्मार्ट, न्यूट्रिएंट स्मार्ट, वाटर स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट और वेदर स्मार्ट खेती प्रोडक्शन अगर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको अगर हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो दैट विल बी एन एडिशनल बून। प्रॉफिट, हाई यील्ड प्रोडक्शन के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करना मॉडर्न फ्लोरिकल्चर का एक मैंडेट बनता जा रहा है, जिसपे कि सब काम हो रहे हैं। तो इनोवेशंस जो फ्लोरिकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें बहुत छोटे और बहुत बड़े प्रकार के इनोवेशंस हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि बड़े इनोवेशंस मशीन्स ही कुछ बहुत बड़ा आउटपुट दें। छोटे छोटे इनोवेशन जैसे अगर हम सही क्रॉप और सही वैरायटी का उस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार चयन करें तो दैट विल बी अ वेरी गुड बून फॉर दैट एरिया। बुंदेलखंड की अगर बात करूं जहां पे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो हमने सही क्रॉप और उसके साथ सही वैरायटी, जैसे गेंदा की यहाँ खेती किसान करते थे, लेकिन आज मैरीगोल्ड पंजाब गेंदा वन हमने इंट्रोड्यूस किया और उससे काफी फायदा उठा रहे हैं किसान। एनुअल क्राइसेंथेमम, जब फरवरी मार्च के बाद फरवरी मार्च में जब और फूल नहीं मिलते हैं, गर्मी बढ़ना शुरू होती है, तो एनुअल क्राइसेंथेमम यहाँ के लिए बहुत अच्छा फूल है जो मंदिरों में माला के रूप में भी प्रयोग होता है। उसमें सुपर बिजली वैरायटी का इंट्रोडक्शन किया जो बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। तो जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वहाँ क्लाइमेट को देखते हुए क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज और क्रॉप को अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली वो एक बहुत फायदेमंद चीज है। प्रोडक्शन में भी इनोवेशन हो रहा है। पहले खाली सीजनल खेती होती थी और सीजनल खेती से किसान ने जो कमाया वो उसी पे निर्भर रहता था, पर आज की डेट में हमारे पास पूरा एक कैलेंडर है जिसमें हम इंटरमिटेंट प्लांटिंग, स्टैगर्ड प्लांटिंग करके क्रॉप की और सही वैरायटी चुन के हम साल भर, लगभग आप 2 महीने अगर छोड़ दें बहुत ही गर्मी के मई और जून, लगभग साल भर हम फूल उत्पादन कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं गेंदा, एनुअल क्राइसेंथेमम, गैलार्डिया, क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस और ट्यूबरोज लेकर चले तो लगभग किसी ना किसी महीने में इनकी प्लांटिंग और किसी ना किसी महीने में आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो लगभग कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉफिट, कंटिन्यूटी ऑफ मनी, साल भर जो किसान है वो पैसा कमा सकता है। ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अपनाकर निश्चित तौर पे फूलों की खेती में हम और अच्छा आय ले सकते हैं। क्लीन प्लांटिंग मटेरियल, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के अगर हम कुछ बात करें तो बेमानी है, क्योंकि खेती तभी अच्छी हो पाएगी अगर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास होगा। अगर मटेरियल अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर पे आप सारे रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करेंगे तो भी यील्ड में अंतर पड़ेगा। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे आजकल जोर दिया जा रहा है और खास तौर से टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में काफी लार्ज स्केल में जैसे जरबेरा है, ऑर्किड्स हैं, ये लगभग टिश्यू कल्चर से ही प्रोपोगेट हो रहे हैं और इनको यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, डिजीज फ्री रहता है मटेरियल और बहुत ज्यादा हमको मटेरियल लगाने के लिए मिल जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसे अगर क्लीन प्लांटिंग मटेरियल और क्रॉप्स में भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और करने की बात हो रही है फ्लोरिकल्चर में, तो निश्चित तौर पे जो हमारी डिमांड है उसको हम टाइमली पूरा कर सकते हैं, क्योंकि टाइमली
प्रोवाइडिंग द क्वालिटी मटेरियल बहुत बड़ा एक लेकुना है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो टिश्यू कल्चर कैन कम एंड प्लेस दैट। इसी में अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आज की डेट में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगभग एक ऐसा आय का साधन बनता जा रहा है, खासतौर से प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए, कि अगर वो इसकी खेती करते हैं तो इससे काफी कुछ इसमें फायदा प्राप्त हो सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ जो इरेक्शन है, अगर आप खड़ा करते हैं पॉली हाउस को, तो निश्चित तौर पे वो थोड़ा महंगा पड़ता है। बट देन देर आर स्कीम्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर, जिसमें सब्सिडी मिल जाती है और सब्सिडी लेकर हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमको ऐसे क्रॉप्स लेना होगा जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमको काफी अच्छा मिले। जैसे कई जगह के रिसर्च के बाद अगर आप देखेंगे तो डच रोजेज जो है वो एक बहुत अच्छा क्रॉप है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए, पॉली हाउसेस के लिए, जहां पर आप लगभग 8 से 12 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन दी कल्टीवेशन टेक्निक्स यू हैव यूज, कमा सकते हैं पर एकड़ पर ईयर। और ये डच रोज आप सब भी जानते हैं कि हमारे पूरे कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है और ये एक्सपोर्ट भी होता है हमारे देश से। इसी प्रकार जरबेरा, जिससे हम 6 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, रिटेल चेन है। और आप देखेंगे बुके से लेके सजावट के लिए बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जब जरबेरा को यूज करते हैं इसका फ्लावर, तो उसकी भी डिमांड काफी है, इसको भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्राइसेंथेमम हमारा जो होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ये गल्फ मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट होता है। तो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। और भी कई क्रॉप्स हैं जैसे ऑर्किड्स हैं, उनकी भी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में खेती कर सकते हैं, की डिमांड काफी ज्यादा है। और इसमें एक फायदा और होता है कि अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे काम करते हैं तो राउंड द ईयर या ऑफ सीजन हम फ्लावर्स को ले सकते हैं। खासतौर से क्राइसेंथेमम में ऑफ सीजन फ्लावर लेकर हम उसको बेच सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब ऑफ सीजन रहता है तो हमको मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा मिलती है, तो किसान भाई उसको दे कैन ग्रो इन ए सिस्टमेटिक वे एंड लॉट ऑफ मनी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अलावा अगर बात करें तो प्रिसीजन फ्लोरिकल्चर की आज बात हो रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फ्लोरिकल्चर में आ रहा है। सब कुछ स्मार्ट की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी स्मार्ट अगर खेती करनी है तो हमको डेटा ड्रिवन फार्मिंग करनी है। आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा एक टूल है जिसको हम यूज करके अपनी खेती में काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बेसिकली प्रिसीजन फ्लोरिकल्चर में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ना, राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, बिल्कुल प्रिसीजली उसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होता है और यील्ड में भी बढ़ोतरी होती है। बेसिकली इसमें जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जैसे ग्रीन हाउस में होता है, उन्हीं को हम मैनेज करते हैं। प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग होती है और उनको मैनेज करके जिस समय जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की जाती है। इसमें बेसिकली सेंसर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, सेंसर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, जो कि जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको अगर हमने सेट कर दिया कि 80% होनी चाहिए, तो अगर 80% से कम है तो अपने आप सेंसर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे। मान लीजिए आपने 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कट ऑफ रखा है, तो अगर वो RH उतना पहुंचता है तो वो फॉगर्स को कट ऑफ कर देंगे। इस तरीके से प्रिसीजन फ्लोरिकल्चर, और ये सिर्फ ग्रीन हाउसेज में ही नहीं, ये ओपन फील्ड कंडीशन में भी प्रिसीजन फ्लोरिकल्चर का आज बहुत मांग बढ़ती जा रही है। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में कई जगह जगह पर इसकी एक पूरी शेड्यूल बन चुकी है, जो कि यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है। उनको अगर फार्मर्स यूज करें तो डेफिनेटली वो इससे काफी कुछ कमा सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल फ्लोरिकल्चर इसमें अछूता नहीं रह सकता। और इनफैक्ट जो नई जनरेशन है वो भी इस चीज को मानेगी कि इफ वी हैव टू पुट दिस फ्लोरिकल्चर एज ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस, तो निश्चित तौर पे हमको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि IoT से हम जो है ज्यादा कंट्रोल्ड और एक्यूरेट अप्रोच रहती है हमारी, जिसके थ्रू हम
इनपुट कॉस्ट भी बचा सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये बेसिकली पर स्क्वायर मीटर या पर प्लांट टेलर मेड होता है। तो जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज होती हैं, और उसमें जो एनर्जी लॉसेस हैं वो भी बहुत कम होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि क्रॉप है, क्रॉप के साथ सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स जो भी डेटा देते हैं वो सॉफ्टवेयर उसको देखता है, आगे डेटा को डिसीजन मेकिंग के लिए एआई प्लेटफॉर्म यूज करता है, और जो डिसीजन आता है वो एक्चुएशन में चला जाता है, मीन्स उसके एग्जीक्यूशन में चला जाता है, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक एग्जांपल साइट किया। आईओटी की बात अगर करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल्सो मॉडर्न फ्लोरिकल्चर में एक बहुत तगड़ा अप्रोच है। और एआई इकोसिस्टम एक धीरे धीरे हमारे किसी भी फार्मिंग का, किसी भी कल्टीवेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो जो एआई का बेसिक यूज होता है उसमें भी सेंसर्स यूज होते हैं जो डेटा कलेक्शन में काम करते हैं, चाहे वो डेटा एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के हों, सॉइल, वाटर, लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या फिर बायोटिक स्ट्रेस के भी हो सकते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज के। तो सेंसर्स जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर कनेक्टिविटी, जैसे सेलुलर और लोरा जो आजकल है, क्लाउड एनेबल्ड एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं, इनका यूज करके बेसिकली ये सब जो है ये हमारा जैसे नर्वस डिजिटल नर्वस सिस्टम है, ये डेटा को ट्रांसफर कर देता है सॉफ्टवेयर के लिए, जहां सॉफ्टवेयर उस डेटा को एनालाइज करता है। और जब वो एनालिसिस उसकी हो जाती है तो वो कहाँ अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, वो हमारे जो जीपीएस, जीआईएस और अदर टूल्स हैं उनके थ्रू ये प्रिसाइजली पिन पॉइंट हो जाता है, और वहां पर इसके लिए काम जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो शुरू कर देते हैं। और इसी में जब लोकेशन पे जब काम करना होता है तो डेटा एनालिटिक्स का काम ये होता है कि डेटा जो है वो डिसीजन में कन्वर्ट करता है, और उसका एग्जीक्यूशन फिर जो रोबोटिक्स और ड्रोन्स हैं वो इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरीके से उनको कमांड मिलता है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसपे काम करते हैं, नॉट ओनली इन ग्रीन हाउसेज, बट इट कैन बी यूज फॉर any type of field cultivation also. And there are people, कई लोग ऐसे हैं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग ए वेरी गुड रिजल्ट, बिकॉज वी ऑल नो कि लेबर की क्राइसिस आज हमारे देश में एक बड़ी क्राइसिस बन पा रही है, मैन पावर की। तो ऐसी चीजों से एफिशिएंट और इफेक्टिव वी कैन हैव आउटपुट। इसके अलावा रोबोटिक्स की अगर बात करें तो ग्लोबली रोबोटिक्स पे बहुत काम हो रहा है, और हमारे कंट्री में भी रोबोटिक्स पे काम हुआ है। फूलों की खेती में भी रोबोटिक्स के ऊपर काम किया गया है। और कुछ फ्लावर्स जैसे जरबेरा है, रोज है, मैरीगोल्ड है या सेप फ्लावर है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड रोबोट्स बन चुके हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं। इनफैक्ट दीज रोबोट्स इंटरकल्चरल ऑपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक वो सब ये कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी विजुअल सिस्टम जो उनका है, और डिटेक्शन रेट कितनी दूरी पे है, वो सारी चीजें प्रोग्राम्ड होती हैं, उस बेसिस पे ये रोबोट्स काम करते हैं। एग्रोबॉट जो है एक रोबोट है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रोबोट बनता जा रहा है, जो कि फूलों में भी जो हेल्दी फ्लावर्स हैं सिर्फ उनको तोड़ता है। यानी एक तरीके से यू सी दे आर डूइंग द मैकेनिकल ग्रेडिंग इन द फील्ड ओनली, एंड लीविंग दोज फ्लावर्स विच आर नॉट ऑफ द क्वालिटी विच वी नीड। तो रोबोटिक्स इज कम अप इन ए बिग वे, एंड आप देखिएगा आगे आने वाले सालों में कि रोबोटिक्स आपको खेत में रोबोट्स दिखेंगे इन द कमिंग टाइम। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें फ्लावर कल्टीवेशन में, तो पेस्ट एंड डिजीज है। सर यूज लॉस, अगर पेस्ट और डिजीज आते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम एट द राइट टाइम। बैक्टीरियल मैरीगोल्ड में तो कभी कभी माइट्स का अटैक होता है या फिर बैक्टीरियल डिजीजेज आती है, तो विद इन 3 days आपकी क्रॉप लगभग खत्म होने लगती है। तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम उसको रोकें? क्यूरेटिव से प्रेडिक्टिव मैनेजमेंट में जाना होगा। कोई बीमारी आ जाए उसको हम क्योर करें
उससे बेहतर है कि बीमारी आने वाली है ये हम प्रेडिक्ट कर लें और उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करें। क्योंकि जब बीमारी आती है तो सभी लोग हाईली टॉक्सिक केमिकल्स का मॉलिक्यूल्स का प्रयोग करने लगते हैं, विच इज ऑल्सो हैजार्डस। और अगर आपको पहले से पता रहे तो यू कैन हैव सम ग्रीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ग्रीन मेथड्स, जिससे कि आप उसको रोक सकते हैं, उसके स्प्रेड को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, जहाँ पे रिफ्लेक्टेंस चेंजेस जो होते हैं वो मेजर कर लेता है इक्विपमेंट प्लांट्स में, और वो डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें पेस्ट और डिजीज का अटैक आने वाला है। इसी प्रकार थर्मोग्राफी सेंसर्स हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन के बेसिस पे काम करते हैं, और ये भी पेस्ट और डिजीज को कैच कर लेते हैं। फिर आज की डेट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स हमारे पास हैं, जैसे लैम्प है, लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन, रियल टाइम माइक्रोचिप पीसीआर सिस्टम, जो डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट करते हैं और फास्ट और एक्यूरेट डायग्नोसिस। एक्चुअली इस ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आपको पता चलेगा, जितना फास्ट आप सही डायग्नोस करेंगे, उतनी जल्दी आप उसके कंट्रोल मेजर्स में जा सकते हैं। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज और इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में काफी कॉम्बिनेशंस हैं, जिसको यूज करके हम पेस्ट और डिजीज फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं फॉर दी कंट्रोल। पोस्ट हार्वेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अमूमन हम लोग जब बात करते हैं तो फ्लावर के या बेसिकली जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके प्रोडक्शन और यील्ड की बहुत बात करते हैं, पर हम सब जानते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए हमको कैसे कम करना है और कैसे बेटर क्वालिटी हो, उस पे काम करना होगा, दैट टू विद ग्रीन एनर्जी पोस्ट हार्वेस्ट चेन। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, जिस पे काफी काम हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पे काफी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में खासतौर से कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो आजकल सोलर कोल्ड स्टोरेज आने लगे हैं, दे आर ऑल्सो मूवेबल। तो सोलर कोल्ड स्टोरेज से आप अगर देखेंगे तो अगेन जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होता है। पैक हाउसेज हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो कूल चेन ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एंड इवन सोलर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन की भी काफी हद तक कमर्शियल लेवल पे बात शुरू हो चुकी है। तो पोस्ट हार्वेस्ट में भी काफी इनोवेशंस आ रहे हैं, जिसपे कि काफी कुछ काम किया जा सकता है और बिजनेस के रूप में इसको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं एज ए फ्यूचर बिजनेस। इसके अलावा कार्बन स्मार्ट फ्लोरिकल्चर, क्योंकि निश्चित तौर पे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बिजनेस, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कल्टीवेशन, फर्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर को सिर्फ कल्टीवेशन का एक साधन देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें वो इनपुट नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में ना देखें। तो हमारा माइंडसेट भी एक चेंज होना चाहिए कि वी नीड टू गो फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस। पर प्रॉफिटेबल के साथ साथ जो आज हमारे चैलेंजेस हैं उनमें सस्टेनेबल भी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की भी बात होनी चाहिए। सो बोथ प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल फार्मिंग की जरूरत है। अब इसमें देखिए चैलेंज कैसा है कि जो रिसर्च है वो बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कार्बन एमिशन बहुत होता है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस की कल्टीवेशन की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा हायर कार्बन कॉस्ट एसोसिएटेड है। केनिया की एक स्टडी में अगर 12,000 रोज स्टेम्स अगर हमने ग्रो किए हैं तो ओपन फील्ड कंडीशन में 2200 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, जबकि ग्रीन हाउस में उतने ही अमाउंट के लिए 35,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी एसोसिएटेड रहता है। मीन्स 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर फ्लावर। तो ये चैलेंजेस हैं जिसको हमें देखना है, जिस पे काम करना है, सो दैट कि हम कार्बन स्मार्ट फ्लोरिकल्चर की भी बात कर सकें। तो देर इज ए नीड टू एड्रेस सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन ने PEFCR, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कैटेगरी रूल्स बनाया है। ये जो मेथोडोलॉजी है ये पूरा कैलकुलेट कर लेती है कि जो हम कट फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं पॉटेड प्लांट्स का, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही नहीं, और भी चीजें जैसे वाटर, एंड देयर आर 16 पैरामीटर्स, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमन है। तो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री जो है
फ्लोरीपी एफसीआर को देख के वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को मेजर करती है और इसको वेल बिलो दी लिमिट लाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि फ्लोरिकल्चर कैन कंट्रीब्यूट इन कार्बन स्मार्ट एग्रीकल्चर। कुछ रिसर्च किया गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे, तो आप देखेंगे कि फ्रूट प्लांटेशन, फ्लावर, वेजिटेबल और मेडिसिनल ब्लॉक्स पे काम किया गया। तो उसमें रोज, कमर्शियल रोज अगर हम ग्रो करते हैं तो कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रोज में इट वाज फाउंड टू बी वेरी गुड, मतलब वेजिटेबल और मेडिसिनल ब्लॉक्स के ऊपर आया हुआ था। तो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो डिसाइड बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ रिसर्च कि हमको अगर जरूरत पड़ रही है तो विच काइंड ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स वी कैन सेलेक्ट एंड गो फॉर प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन। इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे सोलर पंप है इरिगेशन के लिए। मीन्स बाय जस्ट यूजिंग सोलर पंप हम 60 to 70% कार्बन एमिशन को कट कर सकते हैं। तो ये भी एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है डीजल को यूज करने के बदले। सो दिस इज हाउ मॉडर्न फ्लोरिकल्चर इज मूविंग अहेड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बट प्रोडक्शन के अलावा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट मेकिंग है, वो है वैल्यू एडिशन। तो बहुत सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हम फ्लावर में बना सकते हैं, जैसे ड्राई फ्लावर्स है, कॉस्मेटिक्स है, फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स है, परफ्यूमरी है, पिगमेंट, नेचुरल डाई, फ्लावर टिंटिंग का एक ऑप्शन है, एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्लावर अरेंजमेंट और ऑर्नामेंट्स। इस तरीके से वैल्यू एडिशन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको पैसा ज्यादा मिलता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो अगर आप फूल को पर किलोग्राम खरीदेंगे वो रेट, और फूल को माला बना के बेचेंगे वो रेट में ही आप अगर अंदाज देखें तो कितना डिफरेंस। इतना ही नहीं, फूल और बुके का अगर आप रेट में अंतर देखेंगे, लूज फ्लावर बिक रहा हो और बुके बिक रहा हो तो कितना रेट है। तो वैल्यू एडिशन जो है वो एक बहुत श्योर शॉर्ट तरीका है उसी वॉल्यूम में ज्यादा पैसा कमाने का और ज्यादा प्रॉफिट लेने का। तो वैल्यू एडिशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ड्राई फ्लावर। ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों ने सुन रखा है, बट आप अगर देखेंगे हमारे कंट्री में फ्लोरिकल्चर का जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 60% हम ड्राई फ्लावर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है जिसपे बहुत सारा काम किया है। ड्राई फ्लावर्स को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे पेपर बना लें, लैम्प शेड्स, कैंडल होल्डर्स, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्विल्स, कार्ड, गिफ्ट, पॉटपोरी। आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं होटलों में भी आप देखते होंगे कि ये पॉटपोरीज और ये सब फोटो फ्रेम्स वगैरह ड्राई फ्लावर के बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसकी एस्थेटिक वैल्यू बनी रहती है लंबे समय तक। इस पे भी बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स और उनके कौन से पार्ट्स यूज किए जा सकते हैं उस पे भी बहुत सारा काम हो रखा है और जिसको लोग यूज कर रहे हैं। अभी कुछ नए एवेन्यूज आए हैं इसमें भी, ड्राई फ्लावर में। ड्राई फ्लावर बास्केट का कंसेप्ट है, ड्राई फ्लावर बुके का कंसेप्ट है, मेमेंटो जो दिए जाते हैं वो भी ड्राई फ्लावर के बनाए जा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट। और एक पेबल फ्यूजन का एक नया कंसेप्ट आया है जहाँ पेबल्स को फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स या ड्राई फ्लावर पार्ट्स या एनी प्लांट पार्ट्स के साथ हम यूज करके दे आर लाइक एंटिक पीसेस। इनके रेट्स जो हैं दे आर वेरी हाई एंड वेरी अर्बन पेरी अर्बन एरियाज में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स है। एंड इवन कोई विजिटर आता है या किसी को आपको मेमेंटो देना है तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स गिव अ वेरी क्लासिक लुक। तो ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत सस्ते में स्टार्ट हो सकता है और उससे काफी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए किसानों को बहुत ज्यादा लार्ज एरिया नहीं चाहिए, छोटे से एरिया में वो काम कर सकते हैं और लिमिटेड हेल्ड होल्डिंग में इनका काम बन जाता है। और स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप फ्रेश फ्लावर आप लेते हैं, अगर उनको स्टोर करना हुआ तो आपके लिए आपको स्टोरेज का पूरा एक सिस्टम चाहिए। बट हियर यू कैन स्टार्ट इन अ वेरी लिमिटेड एरिया एंड इन अ लिमिटेड अमाउंट। ऐसे ही नेचुरल पिगमेंट्स का बहुत काम है और बहुत ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो स्कोप है। पिगमेंट एक्सट्रैक्शन से
जो आजकल हम कलरफुल डाई बना रहे हैं, नेचुरल डाई बना रहे हैं, वो यूज हो रही है मार्केट में। बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये जो केमिकल सिंथेटिक यूज होने से बहुत सारी बीमारियां, स्किन डिजीज भी होती हैं। तो अगर हम नेचुरल पिगमेंट यूज करेंगे तो वो इको फ्रेंडली भी होता है और एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने कुछ ट्राई किया था जो आप देख सकते हैं, और इस पे हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के साथ एक एक्सपेरिमेंट पैच टेस्ट भी कराया था, और वी फाउंड दैट कि ये जो है दे आर नॉट हार्मफुल टू दी। तो अपने आप देखेंगे कि जब हम ऐसी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो कोई भी चीज जो है उसकी वैल्यू और उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसी तरह हर्बल गुलाल की, अब इट इज वेरी वेल नोन कि जब भी आप होली में गुलाल खरीदने जाते हैं तो पूछते ही हैं कि हर्बल गुलाल हो तो वो लेना पसंद करेंगे, भले ही वो क्यों ना हाई रेट पे हो। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिससे हम गुलाल बना सकते हैं। आई हैव मेंशन फ्यू ऑफ देम हियर। बहुत सारे ऐसे ट्रीज के फ्लावर हैं जिनको भी हम यूज करके गुलाल बना सकते हैं। तो दिस इज अनदर एवेन्यू जिसमें हम इनोवेशंस लाके काम कर सकते हैं। इसी प्रकार इसेंशियल ऑयल और परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है वो भी हम जैस्मिन, रोज, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड से कमर्शियली बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। नॉच की बात करेंगे तो मतलब इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें भी बहुत स्कोप है, बहुत काम हो रहा है, और देयर आर न्यू फ्लावर क्रॉप्स बीइंग एडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल्स ऑन ए रूटीन बेसिस। फ्लावर के प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं जैसे रोज वाटर वगैरह है, इसका भी काफी डिमांड है और ये भी काफी यूज में आजकल चल रहा है। बिवरेजेस का एक बहुत अलग ही रेंज आ गया है, और लगभग कई घरों में आप देखेंगे कि एडिबल फ्लावर्स के, खासतौर से जो फ्लोरल टी है, चाय, वो बहुत चल रही है। गुलकंद के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, वाइन बनता है इससे, सिरप बनता है, जैम जली, बेसिकली दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन होने के कारण इनका डिमांड बहुत ज्यादा, जो भी, क्योंकि हम लोग सब जान रहे हैं आज की डेट में, हमने फूड सिक्योरिटी की बात कर ली है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग सभी लोग हेल्थ हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग इनटू हेल्थ। और फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी इसका बहुत डिमांड है। कई सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं, बाकी हमारे कोलिग्स ने भी किए हैं फ्लोरिकल्चर में। उन्होंने पाया है कि मैरीगोल्ड के पेटल में कैरोटीनॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ल्यूटीन बहुत ज्यादा होता है। अब ल्यूटीन जो है वो आंखों से रिलेटेड एक बीमारी के लिए, जिसको हम एएमडी बोलते हैं, वो उसमें बहुत काम करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो लगभग ल्यूटीन की लोग दवाइयां भी लेते हैं एज ए सप्लीमेंट। तो ऐसे ऑप्शंस आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ते जा रहे हैं कई सारी बीमारियों के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो वो फूड कलरिंग एजेंट के रूप में फ्लावर्स को यूज किया जा रहा है। पोल्ट्री फीड में जो मैं भी बात कर रहा था कि पेटल मैरीगोल्ड के, उसमें बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड्स होता है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज करते हैं। पोल्ट्री को खिलाया जाता है ताकि उसका एग यॉक जो है उसका कलर डीप हो, ज्यादा येलो हो, टुवर्ड्स गोल्डन कलर हो, जिसकी डिमांड मार्केट्स में, होटल्स में बहुत ज्यादा रहती है। जैसे आप देखेंगे गणपति का जो सिद्धि विनायक मंदिर है, वहां पे, वहां जो लड्डू बन रहे हैं, वहां का जो तिलक बन रहा है, वहां पे नेचुरल कलरिंग एजेंट ले रहे हैं, वो भी मंदिरों के फूल से बनाकर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इनोवेशंस की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं, सो दैट कि हम काम कर सकें। बी कीपिंग का एक बहुत ही अलाइड एंटरप्राइज है फ्लावर के साथ। जो ये दोनों एपीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, अगर हम देखें, वैसे भी हम बात कर रहे हैं बीज की आज के समय में कि उनको बचाना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। तो देर आर सम सक्सेसफुल मॉडल जिसमें हम काम कर सकते हैं। मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, गैलार्डिया, जैस्मिन, क्राइसेंथेमम, ये पसंदीदा है क्रॉप्स बीज के लिए। तो हाई नेक्टर के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, पॉलन रिच जैसे क्राइसेंथेमम है। तो आप फूलों को बेच भी सकते हैं, हनी भी उसके साथ मिल सकता है। तो देखा जाए तो वी गेट एडिशनल इनकम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रॉफिटेबल वेंचर्स। तो प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन के बाद अगर हम फ्लोरिकल्चर में आज बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल हमारा फ्लोरिकल्चर प्ले करता है। खासतौर से जब आप देखेंगे
जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत वेस्ट होते हैं, मंदिरों में चढ़ते या फिर सोशल शादियों में, पार्टियों में, आप देखते होंगे इलेक्शंस के टाइम पे माला खूब पहनाई जाती है, फूल खूब दिया, ये सब पूरे फ्लावर जो है नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो ये वेस्ट बन जाता है। मंदिरों का ही अगर हम बात करें तो 17% जो है, जो वेस्ट होता है रिवर में, उसमें 16% तो फूलों का ही जो मंदिर पे चढ़ा हुआ वेस्ट है, क्योंकि फूलों के मंदिर पे चढ़े हुए फूलों को लोग रोड पे नहीं फेंकेंगे, गार्बेज में नहीं डालेंगे, मंदिर के चढ़े हुए फूल निश्चित तौर पे वो नदियों में डालेंगे। तो लगभग 800 मिलियन टन फ्लावर तो मंदिरों में चढ़ रहा है, उसका 16% अगर आप देखेंगे रिवर के पोल्यूशन में उनका योगदान है। ये कुछ मैंने मंदिरों में कितने फ्लावर वेस्ट हो रहे हैं पर डे, उसका आपको एक अकाउंट दिखाने की कोशिश की है। तो ये भी एक इसी चैलेंज में और इसी उसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है सर्कुलर इकोनॉमी की, रिसाइकलिंग की। हम ये सब फ्लोरल वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही मैनेजेबल, लो कॉस्ट बायोडाइजेस्टर ड्रम्स आ चुके हैं जिनको हम यूज करके 40 से 45 दिन में कंपोस्ट बना सकते हैं, और वो भी बहुत रिच है। भले वो फूल वेस्ट फ्लावर है, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बात करें इक्वली गुड कंटेंट में हमको मिलता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में कर भी रहे हैं। नेचुरल डाई भी फ्लावर वेस्ट से बहुत बन रहे हैं, और आप देखेंगे 30 किलोग्राम ड्राइड फ्लावर वेस्ट से 1 किलोग्राम कलर पिगमेंट बनता है, जिससे कि 60 मीटर 55 मीटर तक की हम डाइंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी सस्टेनेबल है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो these kind of things are both sustainable and profitable। अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये भी बहुत अच्छा आप देखेंगे तो काम है। 1 किलोग्राम वेस्ट फ्लावर से 70-80 ग्राम पाउडर बन जाता है, जिससे 100 अगरबत्ती बन जाती हैं। तो लगभग आप दिन में कुछ और काम करें, आप शाम को पार्ट टाइम भी अगर इसको बिजनेस में लेते हैं, तो भी आप 5 से 6 हज़ार रुपए पर मंथ, 2-3 घंटा अगर आप लगा रहे हैं सप्ताह में, तो भी आप कमा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। आप मंदिरों के अगल बगल गवर्नमेंट भी ऐसी चीजों को प्रमोट कर रही है, और लगभग आप देखेंगे तो पूरी चेन बन चुकी है जहां पर ये पूरे ऑप्शंस हैं हमारे पास इनको आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लास्ट में आपके साथ कुछ स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस के बारे में शेयर करना चाहूंगा। जो हमने बात की मॉडर्न फ्लोरिकल्चर इनोवेशंस, वो सिर्फ बातें हैं या रियली वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, वो कन्वर्ट भी हो रही है, सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी बन रही है, क्या ऐसा है? तो आई एम कोटिंग सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स here, जैसे आरोही एंटरप्राइज है गुरुग्राम में। वो लोग इंसेंस स्टिक पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने अपने इनोवेशन से उस अगरबत्ती में मॉस्किटो रिपेलेंट का भी काम, यानी अगरबत्ती भी है और मॉस्किटो भी भगा रही है। तो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन जो है स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इनका यूपीएस बनता है सेलिंग में। इसमें लगभग 200 वुमेन काम कर रही हैं अगर आप देखेंगे तो। ऐसे ही हॉली वेस्ट हैदराबाद में है, वहां 1200 वुमेन इस पे काम कर रहे हैं। 7.5 टन के आसपास फूल 12 जगह से ये लोग कलेक्ट करते हैं, एक शहर से, हैदराबाद से, और उससे बहुत सारे काम कर रहे हैं ये लोग। हैंडबैग और शूज तक बना रहे हैं। कानपुर का जो फूल है, ये भी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्राइज है, और इसने बहुत बढ़िया काम किया है एनवायरनमेंट के लिए भी। 2020 तक 275 किलोग्राम पेस्टिसाइड रेसिड्यू नदी, गंगा नदी में जाने से इन्होंने रोका। ऐसे ही लगभग 2500 मैट्रिक टन फ्लावर को गंगा में बहने से रोका। फूलों पे तो इनका बहुत रेंज है, इसके साथ साथ अब वो वीगन लेदर पे काम कर रहे हैं इन्हीं फूलों से, वेस्ट फ्लावर से, जिसको हम फ्लेदर बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, और अब तो ये दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क इन दिस। और अगर इकोनॉमिक्स की भी हम बात करें तो बहुत महंगा काम नहीं है। अगर रिसाइकलिंग पे हम काम करें तो 5 लाख की मशीनरी लगाकर 3-4 एम्प्लॉय को अगर हम पे करें और इसको स्केल अप कर दें, तो लगभग 1 लाख रुपए तक हम कमा सकते हैं। तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, पेपर्स में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो स्टार्टअप्स की हैं, वो इनमें आती रहती है, जिनको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। कई सारे टेक के लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। इसी प्रकार स्टार्टअप्स में इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस की भी बात हो रही है, क्योंकि अब हमने जो आपको पहले बताया, मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है टेक्नोलॉजी का, और लगभग सब कुछ मॉडर्नाइज कर रहे हैं।
चाहे वो सप्लाई चेन की बात हो, फार्म फ्लावर्स की या ग्रीन हाउस की हो, B2B लैंडस्केपिंग की हो। अनऑर्गेनाइज जो मार्केट था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको हम डिजिटल फ्लोरिकल्चर से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आईडीज बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जहां पर जो सप्लाई चेन था, ये बड़ा फिशी मार्केट होता है फ्लोरिकल्चर का और ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये स्टार्टअप जो है इसमें कूदे हैं और ये इस पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसे स्टार फ्लावर्स है, ये फ्रेश फ्लावर भी बेचते हैं, गार्डन भी बेचते हैं, स्ट्रिंग्स भी बेचते हैं, जो एसेसरीज जो होती हैं, जो इनको यूज करनी होती है, वो सब बेच रहे हैं। हुवू भी एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, जो सप्लाई चेन के साथ साथ पैकेजिंग पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और डायरेक्ट ये कंज्यूमर्स को देता है, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये सेल कर रहा है। माली ऑन डोर, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जहां पर इस ऐप के थ्रू आप आपके नियरेस्ट जो माली है वो आपके यहाँ पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है कि हाउ टू मेक माली रीच योर डोर। इसी प्रकार लैंडस्केपिंग में, वर्टिकल गार्डनिंग में, सब में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ गए हैं सक्सेसफुल। बागवानी नर्सरी, बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। कमर्शियल लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, यहाँ फोटो भी मैंने दिखाया है। हरियाली, अब बिहार में वर्टिकल गार्डन, टेरेस गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक पे काम करते हैं। ईएलटी इंडिया, ये लिविंग वॉल्स लिविंग वॉल्स मॉड्यूलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ग्रीन रूफ्स के लिए, बायो वॉल्स के लिए। मतलब जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड पे ये काम कर रहे हैं। ये फ्यूचर में जो ट्रेंड आने वाला है उसको ये आज ही एड्रेस करें, दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल। ऐसे ही वेंसाई फ्लोरिटेक है, 70 एकड़ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं, 18 से 20 फ्लावर वैरायटी ग्रो करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये भेज रहे हैं, डोमेस्टिक के अलावा अलावा। तो दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप जो है वो लोगों के लिए एक मॉडल बनते जा रहे हैं। ऐसे ही डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C भी इसमें शुरू हो गया है। उगाओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यारी जो है वो इंडोर प्लांट्स पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बॉम्बे ग्रीन जो है अर्बन गार्डन एसेसरीज पे बहुत काम कर रहे हैं। ग्रोइंग मीडिया पे, पोटिंग मिक्सचर पे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़े हैं और उस पे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एआई बेस्ड स्टार्टअप्स भी हमारे इंडिया में शुरू हो गए, जो टोटली एआई बेस्ड है। फसल जो है बेंगलोर का, ये पूरा एआई बेस्ड स्टार्टअप है जो काम कर रहा है। एग्रो टू ओ भी हाइड्रोपोनिक में, वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्रॉप एआई भी इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, न्यूट्रिएंट ट्रैकिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था, उन सब पे ये स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के रूप में आते जा रहे हैं। जो रोबोट्स की बात की थी, ग्लोबली आप देखें तो फ्रेपबॉट, ट्रिक रोबोटिक्स, बॉन्साई रोबोटिक्स, ये बहुत अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया में भी फार्म रोबो और हार्वेस्टेड रोबोटिक्स आ गई हैं मार्केट में। ये भी स्टार्टअप्स हैं जो एआई पावर्ड एग्रीकल्चर रोबोट्स को यूज कर रहे हैं। लेबर शॉर्टेज के कारण फार्म एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनका काफी यूज हो रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब जो है विद इन फ्यू स्पैन ऑफ टाइम आप देखेंगे रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए। अभी ये स्मॉल पॉकेट्स में जा रहा है, बट इन द कमिंग टाइम डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू मेक ह्यूज आउटरीच। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रही है। ट्रेनिंग्स के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके पास, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है, CSIR है, और भी कई सारे MSMEs हैं जो ये लगातार आपको सपोर्ट करते हैं। जो FFDC की मैंने बात की थी कन्नौज में, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सो अगर कोई चाहता है तो इसमें बहुत नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ जाके वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं। बेंगलुरु का बेस्ट हॉट बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के ऊपर काफी लोग इंक्यूबेट हुए। पूसा कृषि का इंक्यूबेटर, वो भी फ्लावर सीड प्रोडक्शन पे और हाइड्रोपोनिक्स पे खासतौर से इंक्यूबेशन दे रहा है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बायोनेस्ट है, जम्मू में है, ये CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन के थ्रू बनाया गया था, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बायो रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो है, ये कट फ्लावर्स पे और ऑर्किड कल्टीवेशन पे इंक्यूबेशन का काम करते हैं। एक ADTV जो है, वो भी अटल इनोवेशन मिशन के तहत फ्लोरिकल्चर पे स्केलिंग अप के लिए बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी यूज करके स्टार्टअप्स और
एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है। तो अगर हम देखें तो फ्लोरिकल्चर, खासतौर से जो आज का मॉडर्न फ्लोरिकल्चर है, वो एक कल्टीवेशन के साथ साथ एक बिजनेस में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा सेक्टर आपके लिए खोल रहा है। और बहुत, जैसा आपको मैंने बताया, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली अफेयर। तो अगर इन सब चीजों पे और इसी तरीके से जो हमारी रिसर्च लाइन है वो काम करती रहे, तो आउटरीच होता रहेगा, तो डेफिनेटली वन डे हम अपने इंडिया को भी ग्लोबल लेवल पे फ्लोरिकल्चर में एक काफी बड़ा स्थान प्राप्त करते हुए देख सकेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा ये लेक्चर सुना। और अगेन मैं थैंकफुल हूँ टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स कि ऐसा टॉपिक दिया आपने जिस पे मैं आपसे बात कर सकूं, अपने विचार रख सकूं। वंस अगेन थैंक यू वेरी Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for enlightening us for such an informative session. We are very, very thankful to you. So the session is open for question and answer. So, sir, in continuation of this, there are few queries of the participants. I'm starting with the first query. Is the polyhouse or greenhouse the future of commercial floriculture in India? Yes, definitely. It is one of the prominent component of commercial floriculture. But the right selection of the greenhouse, that is very important. There are so many greenhouses. उसको आप कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही इतना ज्यादा आता है कि उसको आप कैसे अपने इकोनॉमिक्स में मैनेज करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू चूज द राइट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। जैसे अगर आप सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, ड्राई, सेमी एरिड्स में है, तो डोंट गो फॉर फन पेट पॉली हाउस। आप नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस लें। तो क्रॉप और क्रॉप के साथ राइट सिलेक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस, दैट इज द आंसर फॉर द कमर्शियल production of flowers in the coming time. How can the technology help to make the floriculture more sustainable and environmentally friendly? मेरे ख्याल से जो पूरा मेरा लेक्चर Yes, था sir, I have. वो पूरा इसी के Uh, ऊपर था। and then the तो same the अगर question that मुझे is लगता है related कि to AI. आपको, We have already राइट, discussed आपको about the AI. आपको जवाब मिल गया होगा जी। I hope the participants are satisfied because sir has already shared the detail and already disclosed everything in his PPT. So thank you so much, sir, for such an informative session and joining us. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. So, moving forward, it's my privilege to welcome and introduce our speaker of technical session to Dr. Ajeta Deepika Purushottam. Madam is a distinguished forest scientist and specialized in forest genetic resources, tree improvement, and forest biotechnology. Currently serving as a scientist at the Kerala Forest Research Institute, Kerala, she has over the decade of experience in research, teaching, and extension activity related to forestry and the agroforestry. She holds a PhD in forestry, forest genetic resources from YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Himachal Pradesh, and has made significant contribution to the field of tree genetics, clonal evaluation, conservation, and propagation of forest species. Dr. Ajeta has authored and co-authored numerous research papers, book chapters, and review articles in reputed national and international journals. Her academic experience and excellency, including the research contribution, have been recognized throughout prestigious honors, including Inspire Fellowship, DRDO Best Doctoral Thesis Award in 2018, Young Woman Scientist Award in 2023, and Young Scientist Award in 2025. She is actively involved in guiding postgraduate students and leading several research projects, including focus on the genetic improvement, conservation, and sustainable management of forest resources. Now, I would like to request Dr. Ajita to kindly deliver her lecture. Ma'am, kindly unmute yourself. First of all, good evening to everyone. Am I audible to everyone? Yes, Audible, ma'am, ma'am. you are. Can I share my PPT? Yes. Yes, sure.
Is it visible to everyone, that screen? Yes, ma'am. Screen is visible to us. Okay. First of all, thank you for the brief introduction. And I would like to give a brief note on what is KFRI and how it is started and what activities we are going on. And later on, I will deliver the lecture. So it will take a brief 5 to 10 minutes for the introduction of the KFRI. KFRI is established in 1975 under the KSCSTE, that it is a council which is managing. It is under the government. 2000, that case STC is managing it. So we is to world class research, but trouble research with the taking in I think there is a research network in issue tropic. because voice is breaking in. I think there is a network related issue. Kindly check your network connection, or we can wait for a few minutes so that participants may understand easily. Yes, there is a network related issues. Also request to all the participants kindly wait. We are trying to resolve the same. There is a technical issue related to internet connectivity. So participants are requested to please wait for a few minutes. So till then, we are sharing the details of our society, that is the AFTEFS Society and Vital Biotech Education Group. We are also providing service in publication, patent, and we are also organizing conferences, seminars, symposium, and workshops. So you all are requested to please join all the groups of our society so that we can share the information through the WhatsApp group. Additionally, if you are interested in publication of research paper, you can directly contact to Dr. Jitendra Mehta. He is the president of Vital Biotech Education Group and AFTEFS Society. So additionally, we are also providing patent related, design related services. So for patent related service and design related service, you can directly contact to Jitendra Mehta. So the publishing house is also working on those both domains. With this, we are also organizing international conferences, seminars through different modes. The different modes means to say through the virtual mode and also offline mode. There are several other conferences, those are in hybrid mode. So we will be sharing all the details on your WhatsApp groups. Through the mail, also we are also sharing previously, but in all WhatsApp group, we are sharing all the details of conference, seminar, papers. So stay connected. Till then, we are trying to resolve the technical issue. Let me coordinate with the same. So kindly wait for a while. So, as the Kashish has raised the queries, which group we have to join? We have several group of your our conference seminars. So we have already shared the details with you. There is a link of WhatsApp group so that you can join the group, and we are sharing the details on same group. Additionally, we are having several groups of different conferences and seminars. For example, we are also having a group of this particular workshop. We are also having the group of our previous conference seminars.
So if you are connected in same groups, we will be sharing all the details of upcoming conference, seminars, books on same group. So you will be learning, you will be in direct contact with us, so that if the same is related to you, you can join in future. So that's why I'm saying this, that you can, so that you can join the group. I think few participants have already joined the group. Mr. Ashwini is responding, yes, ma'am. Yes, we will be sharing the links of our different group so that you can join. Additionally, if you are in the group of this particular workshop, we are sharing same detail in all groups. All group of our conference, seminar, workshop, we are sharing same detail. So no need to join any other group. You will get the same detail in same group. So details will be similar. So nothing different in other groups. So I'm saying just be connected, stay connected with us so that you can easily find the details of our upcoming workshop and seminar. Additionally, if you are interested in paper publication, book publication, then we are also having our own journal of society. So you can directly contact with Dr. Jitendra Mehta, because he is the organizing president and also the president of the society, AFTEFS society, including he is also handling the Vital group along with Dr. Jaya Mehta. Both are looking after about the Vital Biotech Education Book Group. That is the one of the most reputed educational group. Those are providing service related to publication. So I'm just the helpful hand. Oh, ma'am has joined. So, ma'am, kindly unmute yourself. You are on mute mode. Jai Hind, ma'am, you are requested to kindly unmute yourself so that we can hear. I think there is a network related issue. Ma'am is trying to resolve on her end. Till then, you can wait for a while. We are trying to resolve. Network issue, ma'am. Yes, ma'am, I can understand. Here it is heavy like oh, it is like this. So yes, is it visible, ma'am? I'm not now. You can do one thing. You can stop sharing and reshare your screen so that screen will be visible to us. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So, where are starting of the institute establishment? Okay, these are the missions and mandate of the institute. Then, center at Lambur, research Ma'am, station at Vellupadam, ma'am, Palapalli. kindly Where stop is your video. Then I think maybe voice will be clear. Stop your video. Then maybe okay, sir. voice will Okay, be okay.
Okay. So field station we do have three. One is Malkapura, Devikulam, and Kottappara. We do have different divisions. In different divisions, different scientists are appointed according to their mandates. First is the sustainable forest management, forest genetics and technology, forest management information system, forest ecology and biodiversity conservation, wood science and technology, forestry and human dimensions, forest health, extended training, library and information. Then Nilambur is one of the important sub-center. In this Nilambur, we do have Tick Museum, which is very world famous museum where like from seed to the roots of this important timber species. Then we do have Bamboo Setam. This is Kurzu sub-center. Where is near Trivur only, where tissue culture facilities are present. Alapalli, we established a long back bamboo system, which is one of the India's largest live collection of bamboos. These are the different divisions. Division consists different departments. So we do have timber identification facility also, then collection of xylarium in wood science and technology department. We do have forest division also. In that, forest entomology and forest pathology takes place. Also, we Okay, have a good, Ma'am, yes, may I request to kindly reshare your slide because your slides are not visible to the participants and also to me because it is showing that Dr. try to, Deepika has started Dr. Nisha, screen sharing. kindly share me that okay, slides, Doctor, so then I can move that slides. No issue. Madam, Ma'am, please you can send me share that the slide. slides with Dr. Jitendra so that he'll be sharing your presentation. ma'am, is it visible now? I'm sharing No, ma'am, the, it's not visible. Not okay, I visible will to do us. one thing. Oh, you can do one thing, you can share with Dr. Jiten, so he'll be sharing the PPT. Okay, ma'am, okay. Share the presentation, sir. No, ma'am, it's not visible to us. Now is it visible? Not visible, ma'am. Okay, I will share to sir and then it will move Okay. further. Share to Dr. Dinesh Kumar or Jitendra sir. Yes, you No, can ma'am, also share. please send me that PPTs. Yes, it's now It's visible. visible, ma'am, visible. On Slide Teen Museum. Slides are visible now. Teen Museum. Okay. We do have museum at Nilambur. Is it visible now? Yes, ma'am, it's on Tick Museum. I think, but maybe it will be moving or not that Okay. slides. Please check, ma'am. We do then we do have soil also. It does have
different types of soil profiles as it is collected from the forest, different forest types. It is one of the most question for all of us in the respective manner. Then it also one NMPB, that is group bamboo group of the different activities in ecosystem programs going on in our institute. It's a project like that. And I like to start with the forest. So I prepared the presentation for the students and faculty. It is say but to understand this forestry, definition forestry is the art of practice of using trees and Sorry to associated interrupt, natural ma'am. resources. Ma'am, your voice is not clearly visible, clearly audible to us. Your voice is breaking and sound is not clear. So I request you to kindly share your PPT with Dr. Jitin so that he'll be sharing your PPT, because participants are raising their issues because you are not audible to them. I think ma'am is facing some technical issues. So I request all the participants to kindly wait. We are trying to resolve through some other move. So if it is possible, she'll be sharing slide with sir. So we will be sharing on behalf of her. So please wait for 2 to 4 minutes. Ma'am, audible? Ma'am, you are audible. Okay, let's start with the forestry and biodiversity. First of all, I explained the definition of forestry. In different aspects, forestry is one of the important science which leads towards the sustainability and find our goals regarding the conservation point of view. And now I would like to discuss the biodiversity. Biodiversity is the variety of living organisms, including diversity in genes, ecosystems, and the complexes which are related to the nature. What is the importance of biodiversity in our day-to-day life? If biodiversity is present, then we can peacefully in day-to-day with dealing with the activities. Ma'am, I'm audible? Ma'am, you are audible, but we don't have your PPT.
So we are unable to share your PPT. I think Dr. Dinesh has Now your mentioned voice the is issue clear, ma'am. that Your voice is your, clear. he has mentioned your issue that there is a But heavy rain in Kerala. I will share So that we can PPT. understand the technical issue. So but kindly share your PPT with Dr. Jitendra Mehta so that he will be sharing your PPT. I shared the PPT with Dr. Dinesh Kumar. Okay, ma'am. He'll be sharing with sir.
यहाँ से ना। हाँ जी। ओके ओके। So there is a information due to heavy rain in Kerala. I think there is a regular network related issue. So we are concluding today's session. So on behalf of the organizing university and AFTEF society, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and propose a vote of thanks. So I would like to thanks to Dr. Ajita Deepika Purushottam and Dr. Gaurav Sharma, Dr. Jitendra Mehta for the organizing of this event, and especially to our speaker Dr. Gaurav Sharma and Ajita for their lectures. Our organizing university, Rani Lakshmibai Central University, Jhansi, University of Agricultural Sciences Raichur, Swami Vivekanand Subharti University Meerut, GD Goenka University Gurugram, Sant Girira Guru Vishwavidhyalaya, and the institution AFTEFS Society, Vital Biotech Education Group, our faculty members, expert, technical support team, research scholar, and student, and especially to Dr. Gaurav Verma from our organizing university, Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi. And I'm also thankful to all the participants who have joined us from different parts of the country. Your presence has made this technical session truly meaningful and memorable. With this, we conclude our day 10. All participants are requested to please join tomorrow at 6 p.m. Wishing everyone a productive, enriching, and successful 21 days Krishi Manthan summer training program. Stay connected, keep learning. Jai Hind to all. Stay tuned. Due to heavy rain, the lecture was not possible to continue because you are still waiting. So, as the query raised by Ankit Kumar Singh, if it is possible to merge with some other lecture, we will try at our best way. So, I'll try for the same, but if it is a regular connectivity related issue, we will inform you accordingly. Thank you so much. This was only for the information.